Hello, welcome and very good morning to my dear students. I welcome you all in this science lecture. So, as you all know, we are on unit number 10, light reflection and refraction. How the reflection will takes place, we get the information in previous lectures. Today, I am going to discuss the standard incident ray topic. Standard incident ray means what is the objective to teach this this specific topic, that we don't know whenever the incident rays are coming on to the mirror in which direction it will reflect it. We have certain kind of laws, that law of reflection, right? Law of reflection हमारे पास है, but each and every time if we try to obtain that law or try to use that law, the calculation is very tedious. मतलब बहुत ही कंटालजनक स्थिति हो जाती है हर टाइम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूटिलाइज करना. सो फॉर दैट सेक ऑफ इजीनेस we will use only certain kind of incident rays which is called as standard incident rays. So in the book this topic is given as representation of image formed by a spherical mirrors using ray diagrams. So here it is mentioned in the form of ray diagrams. So I will show you how it is there. So before going to discuss incident ray, let me tell you some information about the image formation as our topic is suggested, representation of image form. So for the formation of image, there are only two reflected rays required. Concentrate on my words. For the formation of image, we require two reflected rays. So many rays coming from an object, infinite number of rays are coming from a single object or any other illuminous object, but we need to consider only two incident rays and the two reflected rays of that incident ray. Okay, chaliye. It is also already mentioned here, the intersection of at least two reflected rays give the position of image of the point object. Any two of the following rays can be considered for locating the image. Means there is only two reflected rays required to form an image. Okay, chaliye. So let us discuss the cases of the reflected rays. First case, a ray parallel to the principal axis. Means which ray we are talking about? We are talking about the incident ray. See, this is a spherical mirror. And in this spherical mirror, this is a concave mirror and this is a convex mirror. Okay? So in a concave mirror, P is a pole, F is a focus, C is a center of curvature. This is the terminology of a concave mirror. And this line is called as principal axis. So when I considered the incident ray which is parallel to principal axis, this will be my incident ray. Okay, which is parallel to principal axis. ये रे जो है इंसिडेंट रे, ये किसको पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस को. So if I will draw a one incident ray which is incident on a reflective surface of a concave mirror, this point become the incidence point. मीन्स जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रे आ रहा है उसे कौन सा पॉइंट हम कहेंगे? इंसिडेंट पॉइंट. सो एट दैट पॉइंट आई विल ड्रॉ अ नॉर्मल. नॉर्मल मैं कहाँ से ड्रॉ करूंगा? मतलब परपेंडिकुलर लाइन. आई विल ड्रॉ दैट नॉर्मल फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर C एट हियर. ओके, and the angle made between incident ray and that normal is known as incident angle I.
और जितना इंसिडेंस एंगल आई बना उतना ही क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल. एंड आफ्टर मेकिंग दैट एंगल द रे डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम मीडियम. मीन्स डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, रिफ्लेक्टेड रे एट द सेम इंसिडेंस एंगल. एंड विच इज व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे, दैट इट विल पास थ्रू द फोकस एफ. वो कहाँ से पास ऑन होके निकलेगा, फोकस एफ में से. सो वेन एवर द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल passes through the focus F after reflection. रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से वो गुजरेगा, फोकस F में से. ओके, सो दिस इज माई फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे केस, फर्स्ट केस in which I take the incident ray parallel to the principal axis. So we need two reflected rays to form an image. Okay, चल. So this is a case of concave mirror. Now let us discuss about the convex mirror. So this is a one convex mirror. So in a convex mirror, if we will take the incident ray parallel to the principal axis. So for the convex mirror, this is a sphere, right? And this is the center of curvature of the sphere. So this surface, ये वाली सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है. ये वाली सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है. एंड दिस साइड सरफेस, ये वाली जो ग्रेइश दिखाई रही है, वो नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस है. कैसे सरफेस है, नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस है. सो व्हेन द इंसिडेंट रे कम्स, व्हेन द इंसिडेंट रेज कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अभी ये तो मालूम चल गया प्रिंसिपल एक्सिस है. ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज P, दिस इज F, दिस इज C. पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, so when the incident rays coming parallel to the principal axis, after the reflection it will goes away to the mirror. मतलब मिरर से दूर जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे पैरेलल आए और जितना नॉर्मल से एंगल बना, नॉर्मल से एंगल कैसे बनेगा, सो फर्स्ट इंसिडेंट रे कम इन दिस डायरेक्शन. उसके बाद यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं ये पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ और वो नॉर्मल को मैंने एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक. अभी जो ये एंगल बनेगा वो होगा इंसिडेंस एंगल और जो ये एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, बोथ आर सेम. ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, सेम. और ये दोनों सेम एंगल बना के यहाँ से ये जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो निकल जाएगा. ओके, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा, मतलब यहाँ से दूर होता जाता दिखाई देगा, लेकिन असल में वो कहाँ पे आ रहा है ऐसा दिखाई देगा, फोकस F के ऊपर. कहाँ पे दिखाई देगा, फोकस F के ऊपर आता हुआ. ओके, सो दिस इज अ केस अबाउट अ कन्वेक्स मिरर. This is first case in which when the incident ray passing parallel to the principal axis, after the reflection it will passing through the principal focus F. Let us move towards second. Second ray में क्या होता है, let us see. In this case incident ray is passing through the focus. कहाँ से pass on होता है, focus F में से pass on होता है. एंड इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. मतलब ये इंसिडेंट पॉइंट जो है वहां पे इंसिडेंट रे आएगा और ये C से नॉर्मल में वहां पे ड्रॉ करूंगा. सो द एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, तो उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगा ऐसे. ओके, सो रिफ्लेक्टेड रे कैसा यहाँ पे मिल रहा है, तो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसको पैरेलल, उसको कैसा मिल रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. समझ में आया. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R. सो व्हेन द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन it goes parallel to the principal axis. This is very simple.
हमने पहले केस में समझ लिया था कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे एक ही लॉ फॉलो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कन्वेक्स मिरर में भी सेम मैनर के अंदर देखो, इंसिडेंट रे फोकस के ऊपर आ रहा है। कहां पे आ रहा है? फोकस के ऊपर। मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ऐसा आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फोकस तो कहां पे होता है? नॉन रिफ्लेक्टिव साइड के ऊपर। ठीक है। सो ऑन द नॉन रिफ्लेक्टिव साइड फोकस लाइज। सो व्हेन द इंसिडेंट रे is appearing to come on the focus after the reflection, it goes parallel to the principal axis in a convex mirror also. Okay? convex mirror में भी सेम मैनर में ये रूल फॉलो होता है कि जब भी फोकस के ऊपर आ रहा इंसिडेंट रे, फोकस के ऊपर आ रहा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पॉइंट जो है उसके ऊपर आएगा, तो वहां पे सी से जो मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ये नॉर्मल है, सी से ड्रॉ किया गया नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन टू दी सरफेस। तो ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये वाला, दोनों कैसे होंगे? सेम। मींस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो होगा। तो सेम एंगल बना के रिफ्लेक्टेड रे आपका निकल जाएगा। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी तीसरे केस की ओर। देखो यहां पे भाई रिफ्लेक्टेड रे सर नहीं दिख रहा है, कैसे दिखाई देगा? ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के अंदर यहां से पास ऑन हो रहा है आपका रिफ्लेक्टेड रे। यहां से मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से इंसिडेंट रे आया, समझो, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से इंसिडेंट रे आया। तो अभी जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंस करेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जो पॉइंट के ऊपर रे एमिट हो रहा है मिरर में, उस पॉइंट के ऊपर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो आप नॉर्मल ड्रॉ कहां से करते हो? सी से। तो मैंने वो पॉइंट के ऊपर देखो सी से ड्रॉ किया, ऐसे नॉर्मल। तो अभी मुझे बताओ, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? 0। तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या बनेगा? 0, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, angle of incidence is always equals to angle of reflection. So if angle of incidence is 0, so angle of reflection is also 0. समझ में आया सभी को? angle of reflection भी आपका क्या होगा? 0. So 0 एंगल पे ही आपका रिफ्लेक्टेड रे वापस चला जाएगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो वापस चला जाएगा। अंडरस्टूड? चलिए, that thing will same thing will happen in the convex mirror case. convex mirror के अंदर भी सेम चीज होगी। कैसे? देखते हैं। रे अपीयर होगा कि सी के ऊपर आ रहा है इंसिडेंट रे, और वहां उस रे के ऊपर ही नॉर्मल बनाएंगे हम, बिकॉज इंसिडेंट पॉइंट तो वहीं पे है, ये वाला, ठीक है। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा? 0। तो फिर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल भी क्या होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल 0। सो इन द सेम लाइन द रिफ्लेक्टेड रे विल रिटर्न टू इट्स पाथ। ओके, चलिए नाउ फोकसिंग ऑन द फोर्थ केस। फोर्थ केस में देखो, यहां पे मैं एक स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे ले रहा हूं, जो कहां पे एमिट हो रहा है? पोल पी के ऊपर। कहां पे एमिट हो रहा है? पोल पी के ऊपर। तो यहां पे एक इंसिडेंट रे पोल के ऊपर आया, ओके, एट सम एंगल, सपोज यहां पे 60 डिग्री एंगल पे आया, सॉरी 30 लेते, चलो 30 डिग्री एंगल के ऊपर इंसिडेंट रे आया, जिसने सी और सॉरी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना वो कितना होगा? 30। वो दोनों का एंगल कितना होगा? 30। तो सेम 30 डिग्री एंगल बना के क्या निकल जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे, इस मैनर में। तो जितना आपको आई मिला, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला, उतना ही क्या मिलेगा? रिफ्लेक्टेड एंगल। और नॉर्मल कहां पे आप ड्रॉ करोगे? सपोज इंसिडेंट रे इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर इंसिडेंस कर रहा है, मतलब आ रहा है, तो उस पॉइंट के ऊपर सी से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जो बन जाएगा आपका नॉर्मल।
तो ये बीच में नॉर्मल आपने ड्रॉ किया तो उसके और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे आपको निकालना है तो आपने रिफ्लेक्टेड एंगल उतना ड्रॉ करके फिर क्या निकाल दिया है, रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया? सेम थिंग विल हैपन टू दी कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के अंदर भी आपने ड्रॉ किया कन्वेक्स मिरर और वहां पे ये पोल के ऊपर इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रहा है, मतलब आ रहा है इंसिडेंट रे, मतलब कोई ऑब्जेक्ट में से रेज आ रहे हैं और वो रेज कोई एक एंगल के ऊपर मिल रहे हैं। तो ये एंगल कौन सा होगा, तो वो एंगल होगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। समझ में आया सभी को? और उतना ही एंगल बना के एंगल आर, मतलब रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है वो बना के आपका रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगा। समझ में आया सभी को? तो रिफ्लेक्टेड रे का जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो ये केस हो गया कन्वेक्स मिरर के अंदर। यहां पे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमने 4 केस डिस्कस किए। पहला केस कि जिसके अंदर इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा था। कहां पे आ रहा था? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा इंसिडेंट रे, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे, कहां पे से गुजर के आ रहा था? फोकस एफ में से। कहां से गुजर के आ रहा था? फोकस एफ में से। तीसरा केस हमने देखा कि जिसके अंदर इंसिडेंट रे आ रहा था थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। कहां से आ रहा था? थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। चौथा केस जो हमने देखा उसमें पोल पी के ऊपर इंसिडेंट रे आ रहा था। तो ये 4 केसेस में हमें 4 अलग अलग जगह, ये 4, ये 3rd, ये 2nd केस और ये 1st केस, ठीक है? चारों 4 केस में हमें रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन अलग अलग मिली। एक में हमें रिफ्लेक्टेड रे की जो डायरेक्शन थी पहले केस में वो कहां से मिली? पासिंग थ्रू दी फोकस एफ, पासिंग थ्रू दी फोकस एफ। दूसरे केस में हमें रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन कौन सी मिली? पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड केस में हमें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कहां से मिली? सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन कहां पे मिली? इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसी सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे आपका चला जाएगा। ओके। फोर्थ केस में जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रहा था और जितना एंगल बना रहा था उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगा। सो दिस आर दी 4 डिफरेंट केसेस ऑफ स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे, कि जिसमें आपको 4 अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगे। ठीक है? और ये चारों के चारों रिफ्लेक्टेड रे में से हमें सिर्फ 2 का इस्तेमाल करना है। किसके लिए? इमेज फॉर्मेशन के लिए। जैसा मैंने आपको कहा था, वी विल यूटिलाइज ओनली 2 रेज। हाउ मेनी रेज? 2 रेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। सो वी हैव 4 cases. We have 4 cases, and among the 4 cases we will take only 2 cases in which we will take the example of reflected ray. ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक आज का लेक्चर हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसमें से कैसे इमेज फॉर्म होगी ये वाली चीज़ ये हम देखेंगे। ठीक है? चलिए, थैंक यू।